Hello students, this is Sangeeta Vishwakarma. Welcome to all concepts of chemistry. So students, we have already completed two videos of this chapter which is written on a board, acid, bases and salts. In which first video I gave you general introduction of acid, bases and salts and what is the use of these in our day-to-day life. And in second video, I told you about the lots of reaction of acid and bases which are already given in your NCERTs with carbonates, metals and so on reactions, right? So now it's the third video of this chapters and almost we will try to complete the whole chapter in this video. Third part, that is salt. It's very important. Salt. It's very important from exam point of view. From here 2 or 3 marks. Examiner can ask you 2 and 3 marks about the salts, any salts. Then what is the chemical formula, what is the chemical name of it and what are the uses of it. So basically हमने इसमें क्या पढ़ना है about the salt, कैसे salt का formation होता है. In your last video, we have already discussed about the neutralization reactions. That is, what is a salt? Salt means when any acid react with base and it forms salt and water. So that is a salt, right? Salt basically made by two types of ions. It's just introduction according to your 10th class syllabus which is in NCERT at senior C level. One made by cations and anions. And you know about that cations are mainly those metals because वो क्या करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं and they get a positive charge. Positive charge. And what about the anions? Anions are generally anions are आपके नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स, राइट? एंड दे हैव नेगेटिव चार्ज बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू गेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम और अनदर एलिमेंट्स, सो दैट्स व्हाई दे हैव अ नेगेटिव चार्ज. So these are the positive charge means cation and negative charge means anion. When they come in the contact of each other, they form an ionic bond. Basically, they form ionic bond. So two things are more clear for you. One is they are formed by cation and anion. And second one is they have ionic charge. Because अगर कोई देगा तो दूसरे को लेना पड़ेगा, ठीक है? गिव एंड टेक का रिलेशन है. एक ने चार्ज को इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिमूव किया और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को गेट किया. तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग. जितने भी आप बॉन्ड पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, नॉट फॉर दिस लेवल, इट विल स्टार्ट 11th एंड 12th क्लास. सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड. बिकॉज यहां क्या होता है, आपका 100% केटायंस का ट्रांसफर होता है. एक एटम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, दैट इज कैटेगरी ऑफ द मेटल. एंड दूसरे ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, दैट इज अ कैटेगरी ऑफ नॉन मेटल. ठीक है, आपने नॉर्मल एग्जांपल भी देखा होगा, NaCl. तो Na कैसे बना, Na प्लस एंड देन Cl माइनस, NaCl. Is it clear? Now we have understood कि salts जो होते हैं they are formed by neutralization reactions. Now second question come, क्या जितने भी salts होते हैं वो neutral in nature होते हैं? नहीं, exactly नहीं होते. Basically on the basis of these three types of salts are there. First salt that is acid salt. Acids salt. Next one is basic salt.
and third one is neutral salt. Right? Up, see the first one, acid salt. Acid salt means strong acid and weak base. यानी आपका acid should be a strong and base should be the weak base. Right? In that case क्या आपको फॉर्म होगा? अब टग ऑफ वॉर खेलते हैं. एक साइड आपके 5 प्लेयर है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यहाँ आपके 4 प्लेयर्स हैं. राइट? बोथ हैव सेम स्टेमिना. यदि उनकी पावर और स्टेमिना की बात की जाए तो एक जो प्लेयर है वो दूसरे के बेस के एक प्लेयर के बराबर है. अब ये दोनों टग ऑफ वॉर में खेल रहे हैं. जैसे ही खेला तो विच वन विल बी द विनर? डेफिनेटली दिस वन. तो क्या हुआ, जब स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिड है हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो बेस को पूरे को न्यूट्रलाइज कर देगा और उसकी पावर ज्यादा है. दैट्स व्हाई जो हमारा सॉल्ट फॉर्म होगा उसमें एसिड की प्रेजेंस ज्यादा होगी. तो यहां पे हमारा क्या फॉर्म हुआ? एसिडिक सॉल्ट. आई एम गिविंग यू एग्जांपल. स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, वीक बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. When they react with each other, then what will be the formation? First of all, remove the water one and the remaining part will be the acid. So what will be the acid? Magnesium chloride. Now balanced it? It's balanced. How many hydrogens are there? 2 and 2, 4. So balance this one. It's a magnesium chloride. If in any place written as magnesium chloride means what? It is a acidic salt. Next one, basic salt. Basic salt जैसे पता चल रहा है, it has a basicity mode. That means the nature of salt will be basic. In that case, weak acid and strong base, and then salt will be the basic salt plus water. Then see the example of it. यानी हमें यहाँ पे एक वीक बेस लेना पड़ेगा और हमें वीक एसिड लेना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा. तो यहां पर आप ले सकते हैं कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस potassium hydroxides. When they react, remove first water and then remaining part will be the salt. So K2CO3, potassium carbonate. Now balance the reaction. It's a balance, right? यानी ये जो आपका सॉल्ट बना है ये कैसा है? बेसिक इन नेचर. Now see the third one, neutral salt. न्यूट्रल सॉल्ट मीन्स व्हाट? कि एग्जैक्टली उसमें मेटल एंड नॉन मेटल है, ना तो वो एसिडिक इन नेचर है ना वो बेसिक इन नेचर है. सो सी, इसमें क्या होगा आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. यहां पर क्या था आपका? वीक एसिड था और स्ट्रॉन्ग बेस. तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? इट्स मोर एनर्जेटिक. सो दैट्स व्हाई क्या हुआ, हमारा सॉल्ट विल बी द बेसिक सॉल्ट. बट नाउ सी द न्यूट्रल सॉल्ट, strong acid and strong base, तो both are powerful. So क्या होगा? दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे. ठीक है? अब सी, नलीफाई कैसे करेंगे? मीन्स 5 जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ है और 5 यहाँ है, तो क्या होगा? एक दूसरे से कैंसिल आउट, एक दूसरे को क्या करेंगे? वो नलीफाई कर देंगे. सो सॉल्ट विल बी द न्यूट्रल सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर, और दिस सॉल्ट विल बी द neutral. So when anyone asks you salt always neutral, basic or acidic, now you can easily tell him कि कैसे होते हैं, neutral होते हैं, basic होते हैं और acidic होते हैं. Now see the example. HCl. HCl is a strong acid, then strong base, sodium hydroxides. Now first remove the water and the remaining part will be the NaCl. So that is a neutral salt, और इसी को ही बोलते हैं हम common salt, which
we used at our kitchen. These are 5 important salts जिन्हें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, और ये 2 और 3 मार्क्स में डेफिनेटली यहाँ से आता है, जिसमें आपका कॉमन नेम पूछ लिया गया है. देन सेकंड, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस. फर्स्ट इज कॉमन सॉल्ट, दैट इज NaCl, जो कि हम किचन में यूज करते हैं. सेकेंड वन इज ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. Then baking soda, sodium hydrogen carbonate. And third one is washing soda, sodium carbonate plus 10H2O. यानी water का जो content है इसके अंदर 10H2O molecule of water. Next one is calcium sulfate plus half H2O, right? और इसको बोला जाता है POP, plaster of Paris. So these are the 5 salts which we have to learn in this chapter. So this is the commercially methods. इनमें क्या by electrolysis क्या करते हैं हम, ये NaCl लिया है, NaCl plus water, और this is known as brine solution. Brine solution. So nothing, it is just a NaCl normal salt with water, right? And this positive rod is known as anode, and negative node is known as cathode, right? And this is a battery, you know easily. When we start, we pass the current through this solution. So क्या होगा, NaCl क्या है हमारा, ये ions में dissociate होगा. So what is the total reaction? NaCl plus H2O, ठीक है. Then what is the formation? NaOH plus H2 plus Cl2. That is a complete reaction. Now time to balance it. It's now balanced. That means कि आप commercially normal salt से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इन तीनों को आप easily get कर सकते हैं. Now see how it works. Then it's a positive. तो यहाँ आपका क्लोरीन, दैट इज द नेगेटिव चार्ज, तो इट विल सेटल हेयर, एंड हियर इज अ हाइड्रोजन गैस, इट्स अ नेगेटिव चार्ज, सो इट विल बी हेयर. सो सी द रिएक्शंस, हाउ दे रिएक्ट इन दिस सॉल्यूशन. यू नो सोडियम इज हेयर, सोडियम हैज अ प्लस चार्ज. नाउ फ्रॉम दिस it will get a 1 electron, and then it will be the sodium solid, right? Then this sodium solid, when react with the water which is already present in the solution, so in that case it forms sodium hydroxide plus hydrogen gas, right? So hydrogen gas now balance the reaction. Its reaction is balance, sodium hydroxides and hydrogen gas. और देयर इज अनदर Cl. Cl पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो Cl क्या करेगा, यहां से रिएक्शन की, एंड Cl, if we do the same thing, and now it's a gas and it will be a 2 electron. तो इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया. तो इस कंप्लीट प्रोसेस में ये रिएक्शन होती है. हमने ब्राइन सोल्यूशन लिया, ब्राइन सोल्यूशन से क्या, इट्स अ फाइनल रिएक्शन. ब्राइन सोल्यूशन NaCl plus water, in that case there is a formation of 3 things: sodium hydroxide, hydrogen gas and Cl2. और प्रोसेसर क्या होता है आपका, NaCl है, जब भी हम वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं, इट डिसोशिएटेड इनटू आयंस. सो आयंस सोडियम है, सोडियम के पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, so it will get an electron and make a sodium solid. This sodium solid reacts with the water which is present in the solutions, and then again form sodium hydroxide and hydrogen gas. Then another chlorine is present here which already has an extra electron, so it will be combined and will change into the hydrogen gas by removing of 2 electrons. So it's an entire process by which we can get through common salts, hydrogen gas, sodium hydroxides and chlorine.
Now the uses of these products. First, हाइड्रोजन गैस आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, एज ए फ्यूल वर्क करता है, बट इट्स टू एक्सप्लोसिव, तो दैट्स वाई हम इसको घर में यूज नहीं कर सकते, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में यूज होती है एज ए फ्यूल, और इट इज वेरी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मार्गरीन। मार्गरीन क्या होता है, जैसे ऑयल को फैट में कन्वर्ट करने के लिए, ये उस तरह का एक बेस है, इन दोनों के बीच की स्टेज है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। प्रोडक्शन मीन्स यानी अमोनिया को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जब रिएक्शन की जाती है तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, अमोनिया फॉर्मेशन में। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट डिग्रीजिंग ऑफ मेटल, कि कोई मेटल है उसके ऊपर कोई चिकनाहट या कुछ ऐसी चीज लगी हुई है कि आपको उसका सरफेस को शाइन करना है, इट्स अ बेस, तो ये उस हेल्प करता है उसके सरफेस को क्लीन करने के लिए। देन इट इज ऑल्सो यूज इन सोप एंड डिटर्जेंट, जो कि आप 10th चैप्टर में कार्बन, 10th क्लास का एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें बहुत क्लियरली आप पढ़ेंगे। देन पेपर इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज है एज ए ब्लीचिंग। थर्ड वन इज क्लोरीन। क्लोरीन जैसे आपको पता है इट्स अ पॉइजनस गैस, पॉइजनस गैस है, तो पॉइजनस है तो डेफिनेटली ये डिसइंफेक्टिसाइड का तो काम करेगी। तो ये क्या है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है, वाटर को क्लियर करने के लिए, वाटर प्लांट के अंदर। दूसरा, बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स होते हैं तो उनके अंदर माइक्रोब्स को किल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देन आपने सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारा ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है, उसमें भी इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो वहां भी क्लोरीन का यूज हो रहा है। देन आपका पीवीसी, पीवीसी मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड, इट्स अ टाइप ऑफ द प्लास्टिक जो कि पॉलीमर्स हैं, हमारे पॉलीमर्स हैं, यानी टाइप ऑफ द प्लास्टिक विच वी यूज, ठीक है, तो वहां पर भी आपका क्लोरीन का यूज होता है। नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस और यूजेस के बारे में पूछ लिया जाता है। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कि स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम react with chlorine gas, in that case bleaching powder is formed with water, तो calcium oxychloride with water, so this is a formula of the bleaching powder. The name is calcium oxychloride, ठीक है। अब नाउ अब पूछ लिया जाए रिएक्शन, 1 मार्क के लिए रिएक्शन होगी। देन पूछ लिया जाए इसका नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नेम, एंड देन पूछा जाए यूजिंग, जैसा नेम बता रहा है ब्लीचिंग, ब्लीचिंग मीन्स व्हाट, कि कलर को लाइट करना, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, कॉटन टेक्सटाइल में भी यूज होता है, ठीक है। ये क्या करता है, वुड पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, और जो मैंने अभी बताया था आपको कि क्लोरीन के बारे में, और मेन फंक्शन ब्लीचिंग पाउडर का होता है कि ये क्या करता है, जो हमने पेपर लिया है रिसाइकल करने के बाद ब्लीच कर देता है, उसको कंप्लीटली फेयर कर देता है, यानी अगर पेपर के ऊपर राइटिंग लिखा हुआ है कुछ, हम उसे रिसाइकलिंग करेंगे तो पेपर का कलर डेफिनेटली ब्लैक कलर हो जाता है, तो उस ब्लैकनेस वहां से रिमूव करने के लिए हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज करते हैं उस इंडस्ट्री में, सो दैट द पेपर विल बी मोर क्लियर। नेक्स्ट वन इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा फॉर्मूला इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेम क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ इट,
and what are the uses of it. Now see the formation of it. When sodium chloride react with water plus CO2 and ammonia, then the formation of sodium hydrogen carbonate plus ammonium chloride. This is known as ammonium chloride, and this is sodium hydrogen carbonate, baking soda. Sodium hydrogen carbonate. This is a baking soda. Next question आता है, what will happen if this baking soda is heated? So let's see. Basically this part is related to the work of the sodium hydrogen carbonate. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड CO2 इज प्रोड्यूस्ड, राइट. सो सी द वर्क ऑफ इट. हम ये जो बेकिंग सोडा है हम कहाँ यूज करते हैं? अपना बेकिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं. बेकिंग सोडा घर में हम घर में भी यूज करते हैं. केक बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, या फिर भजी बनाते हैं. कुछ भी ऐसी चीज जो हमें फ्लफीनेस चाहिए, वहां इसका बेसिकली बहुत यूज होता है. एक्शन क्या है इसका? हमने सपोज करो एक केक बनाया. केक बनाने के बाद हमने इतना बैटर लिया, देन आफ्टर बेकिंग इट द बैटर इज गोइंग टू दिस लेवल, राइट. तो यहां से लेवल यानी ऑलमोस्ट कितना हो गया? 2 टाइम्स. तो जब 2 टाइम्स बेक किया यानी ये इसको फ्लफीनेस लेकर आता है. जो हमने मटेरियल लिया था उसके पार्टिकल्स क्या थे आपके? दे आर क्लोज टू ईच अदर, बिकॉज यू आर सीइंग हियर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द CO2 gas. When the baking process is completed, in that case the CO2 will release. It needs some place to come outside. So क्या होता है, जो आपने बेटर लिया था, जो मॉलिक्यूल्स आपके क्लोज थे, तो वहां पर क्या होगा? कुछ को आपने देखा ब्रेड, घर में ब्रेड तो आप इजीली देखते हैं, तो उनके बीच में कुछ गैप होता है. वो गैप क्यों होता है? क्योंकि वहां से CO2 गैस का प्रोडक्शन होता है. इट वांट्स टू रिमूव फ्रॉम दैट एरिया. सो दैट्स व्हाई जैसे जैसे वो रिमूव हुए बीच में कुछ होल हो गए, यानी उसमें स्पेस हो गया. दैट्स व्हाई हमारा जो केक है या हमारी ब्रेड है वो डबल टाइम्स हो जाती है और वो फूल जाती है. इट्स अ वर्किंग और यू कैन से इट्स अ यूज ऑफ this baking soda in baking industry or at our home. और हम कई बार छोले भी बनाते हैं घर में, उसमें भी हम इसको डाल देते हैं थोड़ा सा, जिससे बहुत जल्दी पक जाए. पकाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं. ये एंटी एसिड का भी काम करता है. अभी इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब हमारे स्टमक के अंदर HCl होता है, राइट, तो समाव हम बोलते हैं यार एसिड बढ़ गया है, कुछ हमने हमारी बैड फूड हैबिट्स के कारण क्या हुआ, हमारा एसिडिक लेवल इंक्रीज हो गया. तो उस केस में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बेकिंग सोडा वाटर के साथ डिजोल्व करके अगर ले लो तो विद इन 5 or 6 मिनट्स और मे बी अर्ली हमें रिलीफ मिल जाता है और डकारें आना शुरू हो जाती हैं. सो इसने क्या किया, हमारे एसिड को, ये हमारा क्या सॉल्ट है, तो उसके इफेक्ट को क्या कर दिया, कम कर दिया. और ये हम एज ए एंटी एसिड यूज करते हैं, एंटी एसिड. ठीक है. थर्ड यूज इसका क्या है? इट इज ऑल्सो यूज एज ए सोडा, यू कैन से सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, राइट. नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन, वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा. सो प्रीवियस जो हमारी रिएक्शन थी वहां से हमने जिसमें बेकिंग सोडा से क्या बना था हमारा एक रिएक्शन में, सोडियम कार्बोनेट. When sodium carbonate react with 10 molecules of water, then it forms sodium carbonate and 10 molecule of water, and this is known as washing soda. अब इसके यूजेस क्या है? वॉशिंग सोडा है, सबसे पहले तो वॉशिंग के लिए यूज होता है. वॉशिंग के लिए
एंड दूसरा घर की क्लीनिंग के लिए भी यूज होता है, क्लीनिंग के लिए भी यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट यूज होता है इसका आपका ग्लास और सोप इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, ठीक है ना, ग्लास बनाने में और उसकी सोप इंडस्ट्री में भी वॉशिंग सोडा का यूज होता है। एक होता है इसका परमानेंट वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए, टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर के अंदर जो कुछ इंप्योरिटीज हैं उनको परमानेंटली रिमूव करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ सोडियम जो कंपाउंड्स बनते हैं लाइक बोरेक्स, उनमें भी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट एंड फिफ्थ और लास्ट सॉल्ट इज आपका पीओपी, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो रिएक्शन क्या है आपका, पीओपी पहले तो समझते पीओपी है क्या। आपने देखा होगा घरों में जो छतों के ऊपर जो डिजाइन्स होते हैं, इट्स लाइक अ सीमेंट टेक्सचर, तो वो जो टेक्सचर होता है वो हमारा पीओपी है, ठीक है। पीओपी में अगर हम ज्यादा वाटर की अमाउंट ऐड कर दे तो दैट इज नोन एज जिप्सम, ठीक है। जितनी भी केमिस्ट्री है दिस इज ऑल अबाउट योर एनवायरमेंट, जो भी आपके एनवायरमेंट में जो चीजें हैं जो आप यूज करते हैं दैट इज केमिस्ट्री। कैल्शियम सल्फेट then half molecule of water react with 1.5 molecule of water, then it form calcium sulfate, then 2H2O. This form where the 2 molecules of water are added, this is known as gypsum, and this one is known as POP, राइट। सो POP का यूज क्या है, आपका यूज ये है कि आपके फोर वॉल या फिर आपकी छतों के ऊपर जो डिजाइनिंग होते हैं ये उससे बनाने के लिए यूज होते हैं। स्ट्रॉन्ग है जो कि आपके रूफ से इजिली अटैच हो जाती है, ठीक है। और इसको क्या है कि अगर हम जिप्सम को, फॉर्मेशन क्या होते हैं, जिप्सम को हम हीट करें टू 373 केल्विन पर, तो क्या होगा, वाटर जिसमें 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिमूव हो जाएंगे, देन कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ POP, right? So this POP is used to design the roof, और आपके टॉयज बनाने के लिए यूज किया जाता है, जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए यूज होता है। तो आपका आज का टॉपिक जो है कंप्लीटली फिनिश हो गया है, ये आपका सेकंड चैप्टर 10th क्लास का केमिस्ट्री का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो आपके कमिंग चैप्टर्स के बेस्ड होगी टोटली उसके ऊपर। और प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बस आपसे एक अप्रिसिएशन चाहिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ये आपका एक लाइक बटन और सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है और मुझे अंदर से ही मोटिवेट करता है कि कुछ एक्स्ट्रा मैं वीडियो में डालूं, कुछ एक्स्ट्रा बनाऊं। सो कीप टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।